हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੈਚ ਕੈਰੀ ਕੁਐਸਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ MCQ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। सब तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 246 जो की रेफर करता है सेंटर ते स्टेट दोनों के सब्जेक्ट मैटर्स ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? कॉन्करेंट लिस्ट ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। यूनियन लिस्ट ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ 79 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇੱਕ। सही आंसर की है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की है स्टेट लिस्ट का मैटर है, मतलब इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। उस तो इलावा बैंकिंग भी की है यूनियन लिस्ट है। इन्हों ऊपर कानून भी कौन बना सकती है? पार्लियामेंट मींस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है विच शेड्यूल of the Indian Constitution contain the provision related to union list। पढ़ी चुके हैं 7th शेड्यूल ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ਤੇ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 7th शेड्यूल। ਤਾਂ ਫਿਰ 10th शेड्यूल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? एंटी डिफेक्शन लॉस। 9th शेड्यूल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? लॉस जो एग्जाम सीगे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। देखो अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट या किसी होर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को वायलेट करता है तो उस कानून को जुडिशियल रिव्यू के तहत उस कानून को खारिज किया जा सकता है। बट जदों आज़ादी हुई है तो एक इंपॉर्टेंट विषय सीगा देश की जमीन। देश की जमीन ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਦਬਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਅਲੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉੱਚ ਦਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆਂਦਾ IR कोलहोदा वर्सेस तमिलनाडु, जिस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जुडिशियल
review is a basic structure, so it cannot be curtailed. The power of judicial review is a basic structure, ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य सभा विच स्टेट्स दियां सीट्स, ठीक है जी। उस तो इलावा विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन टर्म ऑफ यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, तो आप कर ही चुके हैं। इसका सही आंसर है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल डील करता है लैजिस्लेटिव दी पावर ऑफ डिवीजन के नाल कि सेंटर के उपर कानून कौन बना सकता है, यूनियन लिस्ट के अंदर कानून बना सकती है पार्लियामेंट, स्टेट लैजिस्लेचर स्टेट बना सकती है स्टेट लिस्ट के उपर कानून, ते कॉन्करेंट लिस्ट के उपर कानून कौन बना सकता है, बोथ पार्लियामेंट भी ते स्टेट लैजिस्लेचर भी। चलो उस तो इलावा चलते हैं। अच्छा, थर्ड शेड्यूल किस चीज ना डील करता है? थर्ड शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज। प्रेसिडेंट किस फॉर्म च ओथ लेंगे, यूनियन मिनिस्टर्स ते बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टर्स। उस तो इलावा 5th शेड्यूल करता है डील एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उना एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेट करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरिया के नाल। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के नाल डील करते हैं, वो आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर, ठीक है जी। 9 शेड्यूल जो लॉ exempted ने जुडिशियल रिव्यू तो। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लैजिस्लेचर, स्टेट लैजिस्लेचर दे नाल केड़ा पार्ट डील करता है? पार्ट 5 डील करता है यूनियन दे नाल। पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी दे नाल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 7 जो रिपील हो चुके हैं कदों तो अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट 1956 ध्यान देना। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 डील करता है स्टेट लैजिस्लेचर के नाल। उस तो इलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, केड़ा शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स की गल करता है किथे, राज्य सभा दे विच। तो इसका सही आंसर है 4th। 5th डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरियाज विच रिलेटेड टू द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया। 8th शेड्यूल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे नाल। 6th शेड्यूल भी डील करता है शेड्यूल एरिया दे नाल, बट इट स्पेसिफिक टू 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स दे शेड्यूल ट्राइब्स एरिया दे नाल डील करता है, जिसनों आप शॉर्ट फॉर्म च की कहांगे AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है जी। उस तो बाद चलते हैं ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डैश पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जदों संविधान बनया सी 26 जनवरी 1950 वाले दिन, जिस दिन इसनूं लागू किया गया सी, उस टाइम टोटल पार्ट्स कितने सी? तो सही आंसर है 22।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ 22 ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰੀਏ 9A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 9B ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 14A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ 25। 4th A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 395। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੌਨਸਿਕਿਊਟਿਵਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਆਰਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ 448, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਆ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। 6th schedule of the Indian Constitution not exercises control to the tribal area of which of the following state, किस स्टेट दे ट्राइबल एरिया दे नाल यह डील नहीं करता? देखो असम AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, मणिपुर की जगह ते की है मिजोरम, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following, which of the Indian constitution the provision of पंचायत राज institution, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कदों ऐड किया गया, क्यों ऐड किया गया? देखो इसको ऐड करने के पीछे एक वजह सी, जो वजह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दी हुई सी, आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग सानू डायरैक्शन दी गई है कि स्टेट के अंदर पंचायतों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ता जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स नू कायम किया जा सके। तो आर्टिकल 40 नू यूज करते हुए पार्लीमेंट 73rd अमेंडमेंट कर दी है 1992, जिस दे अंदर एक पार्ट ऐड किया जाता है, पार्ट 9। इस पार्ट 9 के तहत पंचायत नू मिल चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। उस तो इलावा एक शेड्यूल भी ऐड किया गया, वो शेड्यूल केड़ा है? 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ दे नाल डील करता है, 9th लॉ जो एग्जम्प्टेड है। तो इसका सही आंसर है 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल के अंदर की दिता होया, इस पंचायत राज उन्होंने फंक्शन, उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटीज कि पंचायत की की जिम्मेवारियां की उन्होंने ड्यूटीज होंगी, ये भी आप ऐड किया है 93rd अमेंडमेंट के नाल, सॉरी 73rd अमेंडमेंट 1992 के नाल। उस तो इलावा 12th शेड्यूल ये डील करता है म्यूनसिपैलिटीज के नाल, जो आप ऐड किया सी 74th अमेंडमेंट के नाल 1992 दे विच, जिस दे विच एक पार्ट ऐड किया गया 9A जो डील करता है म्यूनसिपैलिटीज नू। इसी दे नाल एक 12वां शेड्यूल भी ऐड किया गया संविधान दे विच, ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैच, इन्हां विचों केड़ा करैक्टली मैच नहीं है? 8वां शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस दे नाल, बिल्कुल सही। 22 ऑफिशियल भाषावां ते नैशनल लैंग्वेज अपनी कोई भी नहीं है, ठीक है जी। उस तो इलावा सैकेंड शेड्यूल डील करता है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस, सैकेंड शेड्यूल इसी नाल डील करता है। 4th शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। 10th शेड्यूल डील करता है डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस, तो इसका सही आंसर की है बी। सैकेंड शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ नाल नहीं डील करता। सैकेंड शेड्यूल डील करता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो कैग है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने सैलरीज ते उन्होंने अलाउंसेस। उस तो इलावा इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होना, सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स इज मेंशन इन पार्ट ई। अच्छा, सैलरी एंड अलाउंसेस तो आपको पता चल गया, बट उसके अंदर भी पार्ट नहीं। तो पार्ट ए किस शेड्यूल का?
शेड्यूल सेकंड दा। पार्ट ई किस दी सैलरी ते एम्यूलमेंट्स दी गल करदा है? पर्सनल सैकटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ सैकटरी? नहीं, इसका सही आंसर है कैग। ता सैकंड शेड्यूल दे पार्ट ई दे विच किस दी सैलरी ते अलाउंसेस दा जिक्र किया गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल च है? आर्टिकल 148 के अंदर, जिसका काम की है सरकारी पब्लिक्स रेवेन्यू के अकाउंट्स नू ऑडिट करना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक द लॉ। सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर कानून बना सकती है जो मैटर रिलेट करते हैं पब्लिक हेल्थ के नाल? बिल्कुल नहीं। पब्लिक हेल्थ एंट्री नंबर 6 स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके ऊपर कानून कौन बना सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर। पुलिस भी एक स्टेट सब्जेक्ट है। पंजाब की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है, तब पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसका सही आंसर की है? रेलवे की है यूनियन लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट है। ठीक है जी, उसके अलावा चलते हैं केड़ा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोक सभा विच शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का जिक्र किया गया? वो केड़ा आर्टिकल है? आर्टिकल 335? नहीं। 21 भी नहीं है। 25? इसका सही आंसर है 30। आर्टिकल 330 दे विच शेड्यूल कास्ट ते शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन का जिक्र किया है लोक सभा की सीट्स के विच। अच्छा, इस दे रिगार्डिंग दो नवीं अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक अमेंडमेंट अपना जिक्र रखना याद 104 था, जिस दे विच शेड्यूल कास्ट ते शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन नू अगले 10 साल लई एक्सटेंड किया गया। ते इन द सेम अमेंडमेंट एंग्लो इंडियंस दियां दो सीटां, एंग्लो इंडियंस दी दो सीट्स जो रिजर्व सी उसनू अबॉलिश कर दिता गया। उस तो इलावा एक रिजर्वेशन इसी आर्टिकल दे विच आर्टिकल 330 कैपिटल ए ऐड किया गया 106 अमेंडमेंट दे नाल, जिहड़ा डील करदा है लोक सभा दे विच वूमेन रिजर्वेशन नू लैके, वूमेन रिजर्वेशन नू लैके। चलो नेक्स्ट चलते हैं ਆਪਾਂ 15th क्वेश्चन के ऊपर। अंडर 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन लाइस किस लिस्ट आता है? एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? देखो इसका भी एक इतिहास है। देखो एजुकेशन एक ओरिजिनली एजुकेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट सी, स्टेट लिस्ट का 42nd अमेंडमेंट 1976 के आने दे नाल इस सब्जेक्ट नू एजुकेशन के मैटर नू ट्रांसफर कर दिता गया किस दे कोल? कॉन्करेंट लिस्ट दे कोल। मीनस हुण इस दे उपर कानून कौन बना सकता है? सेंटर ते स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो एजुकेशन किस चीज का सब्जेक्ट है? तो इसका सही आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ओरिजिनली यह जो स्टेट लिस्ट का ही पार्ट सी, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट इसनू कित्थे लिया दिता गया है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। मतलब इसके ऊपर कानून दोनों पार्लियामेंट ते स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। चलो उस तो बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? इन्हां विचों केड़ा विषय कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है? बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, अडल्ट्रेशन भी है, तो पब्लिक हेल्थ की है एक स्टेट का सब्जेक्ट है। सरकारी हॉस्पिटल्स उन्होंने पॉलिसीज हेल्थ रिगार्डिंग ये कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट, मतलब इन्हां चों सारे स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं एक्सेप्ट किस चीज नूं छड्ड के? लैंड की है? लैंड भी स्टेट लिस्ट के अंदर आंदा है, लीकर भी, पुलिस भी। तो सही आंसर है रेलवे की है यूनियन लिस्ट के अंदर आंदा है। ठीक है जी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which of the following subject are a part of union list, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। which of the following subject are under the union list of the constitution of India, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਵੇਜ਼। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। which schedule of Indian constitution deal with languages recognized by constitution? देखो, अपनी इंडिया की कोई नैशनल लैंग्वेज तो है नहीं, बट हाँ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ऑफिशियल, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਉੈਂਸਸ ਨਾਲ, 10th ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 8th ਸ਼ਡਿਊਲ। 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ which schedule of the constitution of India list the state and duties of India? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਫਰਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੱਸਦਾ ਇੰਡੀਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ is a union of states। ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਉੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਓਥ ਐਂਡ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ, as per the constitution of India, subject livestock and animal husbandry, जीव जंतु, livestock, घरेलू पशु, ਇਹ ਕਿਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਰੈਸੀਡੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੈਸੀਡੂਰੀ ਲਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਸੀਡੂਰੀ ਲਿਸਟ, ਰੈਸੀਡੂਰੀ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ, ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਰੈਸੀਡੂਰੀ ਮੈਟਰਸ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 248 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।